Hello guys, welcome to this lecture Introduction to Relativity. Relativity जैसे ये वर्ड हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं जो हमने 11th-12th में पढ़े। मींस एक पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायरेक्शन एंड अनदर इज मूविंग इन द अनदर डायरेक्शन, देन कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो ये लेक्चर हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। सपोज ए पार्टिकल ए इज मूविंग विद वेलोसिटी u इन वन डायरेक्शन एंड अनदर पार्टिकल b is moving with velocity v in the same direction, then the relative velocity of a with respect to b will be u minus v. If both are moving in the opposite directions, then the relative velocity of a with respect to b will be u plus v. Means for the same direction the sign is negative and for opposite directions the sign is positive, and the opposite directions may be both are moving towards each other or away from each other. So this type of relativity is called Newtonian theory of relativity or classical theory of relativity. If the velocities of these particles become so high that they will be comparable to the velocity of light, then suppose the velocity of particle A is 0.6 c and the velocity of particle B is 0.9 c and both are moving in the same direction, then the relative velocity of A with respect to B is not equal to u minus v. While according to the classical mechanics it is equal to u minus v, but here it is not equal to u minus v. And if both are moving in the opposite directions, then the relative velocity of particle A with respect to B is not equal to u plus v. Means the classical theory fails here when the velocity is comparable to the speed of light. This theory is called Einstein's theory of relativity. Initially it was thought that Newton's laws are universally applicable at all speeds, but new experimental evidences in the beginning of 20th century revealed that Newton's laws are valid only for the objects moving at low speeds and fails when applied to the objects moving with high speeds comparable to the speed of light. Means the classical theory is applicable only for the particles having low speeds. If the speed becomes so high then that it is comparable to the speed of light, then relativistic mechanics was developed by Einstein, and this theory is also known as the theory of relativity. Here we discuss about this theory. And according to this theory, everything in the universe is relative, nothing is absolute. Absolute means invariant और फिक्स्ड। तो उस स्टेटमेंट को भी जरा समझते हैं। सपोज एक बस स्टैंड पर एक स्टूडेंट बैठा है केशव बत्रा और उसी के पास में एक अजय गोदारा, और अभी एक कार मूव करती है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इन दोनों स्टूडेंट्स के पास सभी इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स ये सब कुछ मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ, मास, वेलोसिटी, टाइम, ये सब कुछ मेजर कर सकते हैं। तो ये अभी जो कार मूव होगी उसकी इन्होंने सारी मेजरमेंट्स लिए हैं, तभी इन्हें सामने से एक बारात दिखाई देती है। सपोज ये अंकित बिजलवान की आ रही है और उसमें एक पटाखा छूटता है, तो दोनों टाइम उसका मेजर करते हैं और फिर देखो ये दोनों क्वांटिटीज अपना चेक। सपोज द लेंथ ऑफ द कार अकॉर्डिंग टू अजय 4.5 मीटर, तो बत्रा के अकॉर्डिंग भी 4.5 मीटर थी। मास ऑफ द कार 800 kg, 800 kg। वेलोसिटी ऑफ द कार अजय ने मेजर की 100 किलोमीटर पर आवर और बत्रा ने भी कितनी मेजर की 100 किलोमीटर पर आवर। टाइम जो आपका पटाखा छूटा था उसका सपोज 8 PM पर था अजय के अकॉर्डिंग, तो बत्रा ने भी वो कितने टाइम पर देखा 8 PM पर। तो मीन्स सभी के लिए वो क्या है एग्री। अब क्या हुआ, अजय के घर से फोन आया और वो अपने ट्रैक्टर पे बैठकर घर को चल दिया। कितनी स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तभी फिर से एक कार मूव करती है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब दोनों फिर से मेजर करते हैं और उन्हें सामने फिर से एक पटाखा छूटता हुआ दिखाई देता है। तो ये सारी क्वांटिटीज ये फिर से मेजर करते हैं। अब देखते हैं जरा क्या मेजर करते हैं। अकॉर्डिंग टू अजय लेंथ ऑफ द कार 4.5 मीटर, बत्रा भी उतना ही मेजर करता है। मास अजय के अकॉर्डिंग 800 kg, बत्रा के अकॉर्डिंग भी 800 kg है। बट द वेलोसिटी ऑफ कार अकॉर्डिंग टू अजय 80 किलोमीटर पर आवर एंड अकॉर्डिंग टू बत्रा इट इज 100 किलोमीटर पर आवर। मीन्स दोनों डिसएग्री है। और टाइम सपोज बत्रा ने देखा 8:20 पर, तो अजय के अकॉर्डिंग भी तब टाइम कितना था 8:20। तो यानी कि सभी के लिए दोनों एग्री हैं, लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ कार है वो अजय के अकॉर्डिंग कितनी थी 80 किलोमीटर पर आवर, बत्रा के अकॉर्डिंग 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये इनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है या किसी का इंस्ट्रूमेंट खराब है? तो लेकिन ये दोनों उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट अगर चेक करें तो दोनों सही मेजर कर रहे हैं। तो ये फिर दोनों में डिफरेंस क्यों है? बिकॉज
द अजय इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी कार की स्पीड कितनी आई है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव है। अजय के रिलेटिव में कितने आया, 80 किलोमीटर पर आवर, और बत्रा के अकॉर्डिंग, बत्रा के रिलेटिव में कितना आया, 100 किलोमीटर पर आवर। और बाकी सब चीजें क्या है, एब्सोल्यूट है। अब सपोज हम एज्यूम करते हैं कि जो ट्रैक्टर है इसकी स्पीड है 2.1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड द कार की वेलोसिटी कितनी है, 2.9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स दीज बोथ वेलोसिटीज आर कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब अगर ये दोनों मेजर करते हैं सारी क्वांटिटीज, मीन्स फिर से वही होता है, पटाखा छूटता है, एक कार मूव करके जाती है। अब लेकिन अब कार की स्पीड कितनी है, 2.9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ट्रैक्टर की कितनी है, 2.1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब कार की लेंथ, मास, वेलोसिटी दोनों अजय के अकॉर्डिंग और बत्रा के अकॉर्डिंग दोनों में डिफरेंस है, यानी कि कोई भी एग्री नहीं है। तो ये सारी वैल्यूज क्या है, रिलेटिव वैल्यूज। अजय के रिलेटिव जो लेंथ आई वो उसने मेजर करके बताया, जो बत्रा के रिलेटिव आई वो एलडेस है, और बत्रा के अकॉर्डिंग जो लेंथ है वो अजय के से लेंथ कम है, मीन्स इट इज कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे टाइम भी आपका एब्सोल्यूट नहीं है, देख रहे हैं। अगर अजय ने सपोज टी टाइम पे पटाखा देखा है तो बत्रा कितने टाइम पर देखा, टी डैश पे, एंड टी डैश इज ग्रेटर देन टी। सपोज अजय ने 8:30 बजे देखा तो हो सकता है बत्रा को 8:45 पे दिखाई दे, 9 बजे दिखाई दे, 9:15 बजे दिखाई दे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अजय की घड़ी स्लो हो गई है, तो यहाँ पे टाइम डायलेट हो गया है स्पीड की वजह से, क्योंकि स्पीड क्या है, कंपेरेबल ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। और अगर ये मान लिया 10 साल के लिए इसी ट्रैक्टर से घूमना चला जाए इसी स्पीड से, तो जब इसके अकॉर्डिंग 10 साल होंगे तो हो सकता है कि बत्रा के अकॉर्डिंग वो 50 साल हो जाए, और ये 10 साल बाद घूम के आए तो ये जवान ही रहेगा और बत्रा उसे बूढ़ा मिले। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो घड़ी स्लो हो रही है, वो टाइम ही डायलेट हो गया है। उसके अकॉर्डिंग बत्रा के अकॉर्डिंग सब कुछ अलग टाइम फ्रेम में चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग अलग टाइम फ्रेम में चल रहा है। अब ये डिटेल में हम सारी स्टडी आगे करेंगे, अभी केवल ब्रीफ में हम इसके बारे में बता रहे हैं। एंड दिस रिलेटिविटी इज कॉल्ड आइंस्टीनियन रिलेटिविटी, ओके। एंड दिस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज स्टडीड इन 2 पार्ट्स. One is the general theory of relativity and another is the special theory of relativity. In general theory of relativity, the systems are accelerated with respect to one another. And in special theory of relativity, acceleration is zero. Means this is the special case of the general theory of relativity. That's why it is called special theory of relativity. And when acceleration is zero, means the velocity is constant. It means in special theory of relativity, systems moves with the constant velocity with respect to one another. And constant velocity को हम ऐसे बोल सकते हैं कि constant speed in straight line. Straight line इसलिए कि अगर इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो आपका velocity चेंज हो जाएगी। अगर velocity चेंज होगी तो it means there is an acceleration. So if the particles are moving with constant speed in straight line, then we study these particles in special theory of relativity. और इसमें एक टर्म आती है frame of reference. तो हम अभी frame of reference के बारे में पढ़ते हैं। What is frame of reference? Suppose कोई इवेंट होती है किसी पॉइंट पर। इवेंट मीन्स जैसे अभी लास्ट एग्जांपल में हमने देखा वो पटाखे का फूटना, इट इज ऑल्सो एन इवेंट। इवेंट मीन्स जैसे कोई भी पटाखा फूटा या अपने की लाइट जलना और या आपका पंखा चलना, मीन्स एनी काइंड ऑफ हैपनिंग इज कॉल्ड इवेंट। तो अब इवेंट कहाँ पे हुआ, अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको XYZ कोऑर्डिनेट्स, तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए उसकी। लेकिन अगर आप इसमें साथ में टाइम कोऑर्डिनेट भी ऐड कर दें तो ये इवेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, मीन्स इवेंट की फुल इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। तो अगर स्पेस कोऑर्डिनेट्स के साथ मींस XYZ के साथ एक टाइम कोऑर्डिनेट भी ऐड कर दें तो दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर ऑफ 2 टाइप्स, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉज आर वैलिड एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड। इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फोर्स इज 0, देन एक्सीलरेशन इज 0, मींस दिस इज द अनएक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड नॉन इनर्शियल frame of reference is accelerated frame of reference. And in inertial frame, unaccelerated means velocity constant or particle is moving in one direction with constant speed. तो inertial frame of reference में particles constant velocity से move करते हैं और जबकि inertial frame में with acceleration. And the examples of the inertial frames are a distant star or an earth. Earth को हम assume कर सकते हैं कि ये inertial frame है, but actually it is not an inertial frame because earth moves around the sun and also rotate its own axis, so it has the acceleration, but acceleration is so small that we assume that it is an inertial frame of reference. और suppose एक frame S है inertial frame of reference and another frame S dash is moving with velocity v with constant velocity v with respect to frame S, then S dash is also an inertial frame of reference. And suppose S is an inertial frame of reference
and another frame of reference is moving with constant acceleration a, then this s dash is not an inertial frame of reference. This is non-inertial frame of reference. Okay guys, thank you. In the next lecture we will discuss about the Galilean transformation and Lorentz transformation.